हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 9th क्लास के बच्चों के साथ। तो सब्जेक्ट हमारा जो है वो साइंस है और टॉपिक हमारा ये जनरल टॉपिक हमारा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। तो अब हम जो है वो हमने कल वाले दी अर्लियर चैप्टर वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द एटमॉस्फेयर, व्हाट कंटेन एटमॉस्फेयर, and as we know that the gaseous envelope around the earth which surrounds the earth, a mixture of gases which surrounds the earth, that is called as atmosphere. And atmosphere is a part of biosphere. Atmosphere, it is a part of biosphere. Means there are certain essential things in the atmosphere, and atmosphere is a vacuum. For we people, that birds can fly in the atmosphere, we can move our parts of the organ. Whenever we move from one place to another, it means we can make use of our atmosphere. For breathing system, for breathing, we can take different types of gases from the atmosphere. When we breathe out, it means when exhale the carbon dioxide, it will go in the atmosphere. It means atmosphere which is a life supporting, and without atmosphere life is not possible. It is why the other planets of our solar system which do not contain these gases which is essential for life, it means it is a life, it is a earth which provides different types of gases for life processes. These plants can use the carbon dioxide which is available in the this atmosphere, and the photosynthesis process takes place in the plants. Similarly, a human being use oxygen for breathing purposes and for respiration process. As earlier we have discussed that nitrogen whose percentage in the atmosphere is 78%. Then comes oxygen, that is 21%. Then comes carbon dioxide, that is 0 point something, means 1, that is 1%. Then comes argon, that is 0.23. Then there are other gases along with dust particles and water vapors are present. एक तो नाइट्रोजन है, नेक्स्ट ऑक्सीजन 80% है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, देन आर्गन है, फिर अदर गैसेस along with dust particle. Their percentage is so low, means that is negligible, but they are present in the atmosphere. There is dust particles are there and water vapors are there in our atmosphere. It is our common observation that we feel, जैसे हम when we start our education in first primary, there is science in which the first chapter of that lesson is हवा क्या है, what is air, can we touch air, can we see air. अब जो है the atmosphere which is mixture of different gases, it means it is called the whole
this mixture of gases is known as air. And air is invisible. Air is not visible. Once it is not visible, we can say that we feel air. Suppose आजकल गर्मी है and टेम्परेचर ज़्यादा होता है, we are in a room and जब हम स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, तो वी विल स्विच ऑन आवर फैंस. हम फैंस को ऑन करते हैं और फैन जो है वो नाचता है, फैन रोटेट्स. इसका जो है सर्कुलर मोशन है फैन का. इट कैन मूव इन द फैन हैज ए सर्कुलर मोशन एंड while moving the fan is moving, it expand the air which is around the fan. Expand mean expansion. हवा का मोमेंट बनाता है. इसको means इसको फैलाता है. हवा जो इसके इर्द गिर्द थी, चूंकि ये नाचता है एज मोशन ऑफ द फैन, जो हवा वहाँ की जो फेंकने आएगी, हवा जो है पैदा नहीं करता, लेकिन इसकी स्पीड के मुताबिक उस हवा को मूव कराता है. जब ये मूव कराता है तो हमको ठंडी लगती है. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और भी देना चाहता हूँ. एक नंबर 1 ये है कि व्हेन वी फील हॉट, जब हमको गर्मी लगती है और हम अपने फैन को, कूलर को, उसको जो है वो ऑन करते हैं, हमको हवा मिलती है तो हमको फील होता है कि हवा चल रही है. फैन को बंद कर दिएंगे हम तो फैन को बंद, ऐसा होगा हवा नहीं चलेगी. इट मीन्स हवा जो है देखी नहीं जाती कि कौन सी हवा आ रही है, बट वी फील. तो एक नंबर ये होगा कि हवा को हम फील कर सकते हैं. फिर दूसरा जो है, हवा जो देखी नहीं जाती, बट ये हवा जो है इट इज ए मैटर, हल्की है, गैस है. तो हवा के लिए दूसरा एग्जांपल हमारे पास है कि जब हम इंस्पायर करते हैं, हमारा एब्डोमेन जो है, हमारा फेफड़ा जो है, हमारे लंग्स जो है, दे एक्सपैंड एंड रिलैक्स. जब हम हवा को अंदर डालते हैं तो हमारे फेफड़े जो है दे एक्सपैंड, फूल जाते हैं और हमारा पेट जो है वो आगे निकलता है. जब हम एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं हवा को, तो ये जो है हमारा पेट पीछे होता है. इट रिलैक्स एंड एक्सपैंड, पीछे होता है और आगे निकलता है. फिर ये सेकंड एग्जांपल है, जब हवा हम अंदर लेते हैं तो हमारी जसामत जो है लंग्स की फूल जाती है, फैल जाती है. फिर देन दिस वॉलीबॉल इज एन एग्जाम्पल. हम ये कह सकते हैं कि हवा जो है, हवा है और हवा को हम देख नहीं सकते, बट हम इसको ना ही टच कर सकते, हम इसको फील कर सकते. देन एक वॉलीबॉल है जिसको हम जो है अपने पॉकेट में डाल सकते हैं, अपने जेब में रख सकते हैं. बैलून, देन इन्फ्लेट, फिर उसमें हवा भर दीजिए, इट एक्सपैंड and then we will try to put that balloon in our pocket. We cannot do this. या एक वॉलीबॉल में हवा भर दीजिए, फिर उसको प्रेस कीजिए, वो प्रेस नहीं हो सकता. इट मीन्स हवा जो देखी नहीं जाती है, जो टच नहीं की जाती है, लेकिन हवा है. फिर हम नाइट्रोजन को कैसे प्रूव करें? हम ऑक्सीजन को, सपोज ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमारे जल लिया. ऑक्सीजन इज ए बर्निंग फॉर स्पोर्टर फॉर बर्निंग मीन्स इट कैन हेल्प बर्निंग. नथिंग कैन बर्न विदाउट ऑक्सीजन. इट मीन्स ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग. एंड मैंने कल भी बात की कि जब हमारा फूड डाइजेशन होता है, इट मीन्स फूड बर्न्स एंड वंस ये जो ऑक्सीजन वहाँ पहुँचती है तभी तो डाइजेशन होती है, तभी बैकग्राउंड ऑफ फूड, the food component which we take that can be broken down into simpler components in our body, and then the complex substances, that is the salt, the sugar, the fats, whatever
is the component of food that can be built inside the body, and the blood which is जो बहुत कॉस्टली है, जो ऐसे नहीं बनता, that is formed inside the body by the mixture of different components. पहले इनको ऐसे हो जाता है कि हम ऑक्सीजन जो है जलने में मदद करता है, और हम इसके लिए एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं. एक्टिविटी क्या है कि हाउ कैन वी प्रूव दैट आवर एटमॉस्फेयर कंटेन 21% ऑफ ऑक्सीजन. सपोज हम क्या करेंगे इसके लिए, टेक ए टफ, एक टफ को ले लीजिए, एक बर्तन ले लीजिए, एक एक्टिविटी जो आप अपने घर में भी कर सकते हैं. ये प्रूव करना है हमने कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विच इज 21. हाउ कैन वी प्रूव? इट कैन नॉट नीड्स इक्विपमेंट्स एंड लैब. वी कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट होम. दैट ऑक्सीजन which is present in the atmosphere, that is 21% of the total. Means आप हमने क्या करना है, एक बर्तन लीजिए, एक कटोरी ले लीजिए, कटोरे को पानी के साथ भर दीजिए. अपने घर की बात है, क्योंकि वी आर नॉट परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इन स्कूल. आप अपने घर में कर सकते हैं, वहाँ पे कोई लैब की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है. तो आप एक टब ले लीजिए, आपका टब होता है घर में, उस टब को फिल द वाटर अप टू द लेवल ऑफ ए गिलास. गिलास एक में उल्टा कर दीजिए इसके, और उस ये जो गिलास है, गिलास का आधा पोर्शन पानी के ऊपर रहे. दिस इज अ टब, दिस इज अ टब. आपके घर में टब है, टब को पानी से इतना भर दीजिए कि वो गिलास का हाफ फिल करे. एक गिलास ले लीजिए, और जो शीशे का गिलास हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, एंड व्हाट यू हैव टू डू, फिल ए टब विद ए वाटर विच कवर द हाफ गिलास. एक गिलास है जो आपके घर में मौजूद होता है शीशे का, उस कांच का गिलास ले लीजिए, उसको आप इस पानी में डाल दीजिए, उल्टा करके लीजिए. एक बीकर नुमा एक बीकर होगा, या एक आपका बीकर नहीं है घरों में, आप एक गिलास को लीजिए, और गिलास का नोट रखना है कि गिलास का आधा से ज़्यादा पानी जो है वो नहीं आना चाहिए, आधा खाली रहना चाहिए. चूँकि अब इस पानी में जो है आप हल्दी डाल दीजिए, आपके पास हल्दी है, या किसी किस्म का रंग डाल दीजिए, क्योंकि ये कलर्ड पानी हो जाए. अब शीशे का गिलास जो है वो दैट इज ए कलरलेस, और शीशा भी कलरलेस है, और पानी भी कलरलेस है. कब कितना पानी चढ़ेगा इसमें, दैट कैन नॉट बी मार्केड, दैट इज नॉट विजिबल इजिली. वहाँ पे एरर आ सकता है. यू कैन पुट सम टाइम, हल्दी आप डाल दीजिए इसमें, या कोई रंग आपके पास है, आप इसमें रंग डाल दीजिए, तो आपका पानी का रंग जो है चेंज हो जाएगा. नाउ अब क्या करना है, देन रिमूव दिस गिलास आउट ऑफ द वाटर, या अगर ये इधर ही रहने दो, पुट अनदर गिलास. फिर क्या करना है फिर आपने इसको पानी दोबारा से निकालना है, एंड देन आपने एक जलती हुई मोमबत्ती इसके अंदर डाल देनी है. एक जलती हुई मोमबत्ती आप टब के अंदर फिक्स कर दीजिए पहले, फिर इस मोमबत्ती को जला दीजिए. जलने के बाद इसमें जो है वो पानी भर दीजिए. पानी आधा कैंडल और आधे गिलास को कवर करेगी. फिर देन आप इसमें रंग डाल दीजिए ताकि ये कलर बन जाए. देन आपने वो गिलास लाना है जो आपने पहले से रखा, और कवर दिस कैंडल, burning candle in a tub, cover that candle with the glass. वो गिलास से इसको, एक बीकर से इसको कवर कर दीजिए. तो आप देखोगे जो एरिया पानी से ऊपर गिलास का था वो खाली था पहले, फर्स्ट सिचुएशन. फिर जब दूसरी सिचुएशन में जब जलती हुई मोमबत्ती इसमें डाली, चूंकि गिलास पानी में है, अब आप देखेंगे कि जब तक कैंडल इसके अंदर घुस जाएंगे
और लेवल ऑफ द वाटर जो है गिलास में राइज हो जाएगी। ये गिलास के अंदर पानी जो है आपको ऊपर चढ़ा हुआ नजर आएगा, इतना जो है पानी का गिलास में पानी भर जाएगा और कैंडल हमारी बुझ जाएगी, ये बुझ जाएगी, जलनी बंद हो जाएगी। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि ऑक्सीजन जो जलने में मदद देती है और कुछ ही थोड़ा सा जली, जितनी परसेंटेज, सपोज ये यहाँ तक 100% गिलास का जो खाली था अंदर से, ये खाली था अंदर से यहाँ तक बिफोर कवरिंग या बिफोर बर्निंग द कैंडल। फिर कैंडल को जलाया, फिर हमने गिलास को कवर किया। ये 100% में से आपका अगर इसको मार्क हमने 100 किया हुआ था तो हम देखेंगे कि 20 जहाँ पे मार्क किया था उतना लेवल जो है पानी का गिलास के अंदर राइज हो जाएगा, चढ़ जाएगा और वो रंग दूर से ही दिखाई देगा कि पानी का लेवल जो है इधर तक है, लेकिन ये पानी गिलास के अंदर जो है ऊपर चढ़ गया। क्योंकि अब कोई जगह जो है वो खाली नहीं रहती है, हर चीज़ किसी वैक्यूम में वो हवा से भरा हुआ होता है और जैसे ही वो हवा चूँकि खाली जगह थी, इसमें ऑक्सीजन थी और जितना ऑक्सीजन विच सपोर्टर फॉर बर्निंग, अब जितनी परसेंट 20% इसमें थी उतना जलने में मदद हुई और बाकी जो है उतना पानी का लेवल जो है वो राइज हो जाएगा और जो फिर गिलास का हिस्सा खाली रह जाएगा, इट मीन्स दैट इज ए परसेंटेज ऑफ दिस नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस जो पहले से ही मौजूद थे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो राइज ऑफ वाटर इन ए गिलास दैट इज ए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दी एटमॉस्फेयर। फिर ये बुझी क्यों? क्योंकि जितनी 21% जो उस गिलास के अंदर जितनी ट्रैप हुई थी ऑक्सीजन उतना जला और जलने के बाद उतनी लेवल इसकी बढ़ जाती है, पानी राइज हो जाता है और वो फ्रॉम हियर वी कैन प्रूव दैट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 21% of the total gas. So this is regarding how we will prove that ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन दी एयर। अब जो है हमने पोल्यूशन और वगैरह और को भी स्टडी करना है या कैसे हम एक डस्ट पार्टिकल को कैसे जो है वो प्रूव करें कि हवा के अंदर मौजूद है, इसके लिए भी एक्टिविटी है, लेकिन टुडे इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है आके हम प्रूव करेंगे कि हमारा जो हम कैसे प्रूव करेंगे कि डस्ट पार्टिकल ये वाटर वेपर्स जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद है, हालांकि हमको दिखते नहीं है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी वी कैन प्रूव दैट द वाटर वेपर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। थैंक्स।